Hello everyone. Let's start with the topic land revenue system of chapter 8 peasant, zamindars and state. So revenue from the land was the economic mainstay of the Mughal empire. It means that ki Mughals were economically fully dependent on the revenues which were collected from the land for their income. It means that ki Mughal empire was dependent for their income on the revenue collected from the land, and it was therefore vital for the state to create an administrative apparatus to ensure control over agriculture production. So it means that it's very important for the state to establish or to set up such a administrative system so that they can get regular agriculture production, and even to fix and collect revenues from assess the length and breadth of the rapidly expanding empire also, because on this, and even to fix the amount of the revenue collected from it, and even the length and breadth of the rapidly expanding empire also from across मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कुछ सिस्टम फिक्स करना, क्योंकि उनकी एम्पायर की लेंथ और ब्रेड्थ मतलब दिन पर दिन उनके एम्पायर की जो लंबाई और चौड़ाई थी दैट वाज इंक्रीजिंग. एन अप्रेटिस इंक्लूडेड, अप्रेटिस मीन्स the administrative policy, means the policy or the system included the office means daftar of the diwan, who was responsible for supervising the fiscal system. Fiscal means financial system of the empire. These revenue officials and record keepers, revenue officials those who were responsible for collecting the revenues, and record keepers those who were recording each and every record of it, penetrated the agriculture domain and became a decisive agent in shaping agrarian relations. So they were penetrating means they were the very important part in the agriculture domain and became a decisive agent, very important agent in shaping agrarian relations. मतलब उनका बहुत important role था agrarian एग्रीकल्चर पीपल के साथ और द कल्टिवेटर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप करने में. द मुगल स्टेट ट्राई टू फर्स्ट एक्वायर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंड ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड्स इन द एम्पायर. फर्स्ट ऑफ ऑल मुगल स्टेट वांटेड टू नो दैट कि हाउ मच लैंड इज़ अंडर एग्रीकल्चर एंड व्हाट दिस लैंड्स प्रोड्यूस, और उस लैंड में क्या क्या प्रोड्यूस होता है बिफोर फिक्सिंग द बर्डन ऑफ द टैक्सेज ऑन द पीपल. टैक्स फिक्स करने से पहले फर्स्ट दे वर सीइंग दैट कि हाउ मच एक्सटेंड ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज़ देयर इन द एम्पायर, and secondly कि what was produced on that land. And the land revenue arrangements consisted of two stages में वो arrange करते थे land revenue को. First assessment and then actual collection. First of all they were assessing the land कि land is fertile, middle fertile मतलब less fertile or not even fertile, and then actually they were collecting the revenue. And zama was the amount assessed. zama वो amount था जो कि fix किया जाता था revenue के लिए as opposed to the haza. हाजा होता था अमाउंट कलेक्टेड. असेसमेंट जो पहले असेस किया जाता था कितना अमाउंट जो है वो उनको कलेक्ट करना है उसको कहते थे जामा, और जो एक्चुअली कलेक्ट करते थे अमाउंट उसको कहते थे हाजा, जो कि अमाउंट कलेक्ट होता था. मतलब हम असेस तो पहले भी करते हैं कि इतना अमाउंट हमने कलेक्ट करना है, लेकिन उसके बाद कलेक्शन कितनी होती है दैट वाज कॉल्ड हाजा. इन हिज लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ द अमील गुजर्स थे जिनकी ड्यूटी थी रेवेन्यू कलेक्टर्स की. अकबर डिक्री मतलब रॉयल ऑर्डर दैट वाइल ही शुड स्ट्राइव टू मेक कल्टिवेटर्स पे इन कैश. उनका ये ऑर्डर था कि वैसे मैं चाहता हूँ कि कल्टिवेटर शुड पे इन कैश, बट ऑप्शन ऑफ द पेमेंट इन काई शुड ऑल्सो बी गिवन टू द पीपल, मतलब टू द कल्टिवेटर्स, कि उनको पैसों के अलावा फसल के रेवेन्यू जो है वो फसल के रूप में भी दे सकते थे वो टू द रेवेन्यू कलेक्टर्स. वाइल फिक्सिंग रेवेन्यू द अटैम्प्ट ऑफ द स्टेट वॉज टू मैक्सिमाइज इट्स क्लेम्स. जब भी वो रेवेन्यू फिक्स करते थे तो उनका जो मोटिव क्या होता था स्टेट का, अपने क्लेम्स को, अपने जो रेवेन्यू के जो राइट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना. मैक्सिमाइज मतलब अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करना. एंड द स्कोप ऑफ एक्चुअली रियलाइजिंग दिस क्लेम वॉज हाउएवर समटाइम्स थ्राफ्टेड बाय द लोकल कंडीशंस. थ्राफ्टेड का मतलब होता है नाकाम होना, ठीक है, कामयाब नहीं हो पाना. लेकिन उनका जो स्कोप होता था ना एक्चुअली रियलाइजिंग दीज क्लेम्स, उनका ये मतलब होता था कि जो उन्होंने रखा है मोटिव कि इतना उनको कलेक्ट करना है, तो कई बार वहाँ की लोकल कंडीशन, सपोज लोकल कंडीशन थ्राफ्टेड का मतलब है नाकाम होना, मतलब वो वहाँ की लोकल कंडीशन उनको उसके कलेक्शन में नाकाम कर देती थी. वो रीज़न ये था कि समटाइम्स मे बी इन वन पर्टिकुलर एरिया में देयर इज़ ड्रॉट एंड देयर इज़ नो रेनफॉल, और मे बी समवेयर देयर इज़ द फ्लड. सो इज़ इट पॉसिबल फॉर द रेवेन्यू कलेक्टर्स टू कलेक्ट द सेम अमाउंट विच ऑलरेडी असेस्ड? सो दैट वॉज टफ. सो दैट इज़ वाई दे सेड कि कई बार वो उनका
जो मोटिव होता था, टारगेट होता था कलेक्शन का, दैट वाज डिफरेंट, पर कई बार उस टारगेट को पूरा करने में वो नाकाम हो जाते थे। एंड बोथ कल्टिवेटेड एंड कल्टिवेबल लैंड्स वर मेजर इन ईच प्रोविंस, दोनों ही लैंड को मेजर किया जाता था, जो कल्टिवेटेड ऑलरेडी कल्टिवेट हो चुका था और जो आगे लैंड अवेलेबल है कल्टिवेशन के लिए, दोनों को मेजर किया जाता था प्रोविंस में। एंड आइन कंपाइल द एग्रीगेट्स ऑफ द सच लैंड्स ड्यूरिंग अकबर्स रूल, और आइन ने ये भी बताया है, आइन अकबरी में ये भी बताया गया है कि अकबर के रूल में इन लैंड को एग्रीगेट कितना उसमें से प्रोडक्शन निकलेगी, एग्रीगेट देखा जाता था। एंड एफर्ट्स टू मेजर लैंड्स कंटिन्यूड अंडर सब्सिक्वेंट एम्परर्स, और उनके बाद आने वाले सारे एम्परर्स भी उस लैंड्स की असेसमेंट करते रहे हैं आगे। एंड फॉर इंस्टेंस इन 1665 औरंगजेब expressly instructed his revenue officials to prepare annual records of the number of cultivators in each village। उन्होंने क्या कहा अपने रेवेन्यू कलेक्टर्स को, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को, कि फर्स्ट प्रिपेयर आ एनुअल रिकॉर्ड्स ऑफ द, हर साल मतलब एक लिस्ट बनाई जाए जिसमें ये देखा जाए कि किस विलेज में कितने कल्टिवेटर्स हैं, कितने किसान हैं। येट नॉट ऑल एरियाज वर मेजर्ड सक्सेसफुली एज वी हैव सीन फॉरेस्ट कवर्ड ह्यूज एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड थस रिमेन्ड अनमेजर्ड। सो उनका ये कहना था कि अगर हर साल हम उसको मेजर करते हैं तो हमारे एरिया, हमारे एम्पायर में काफ़ी सारा ऐसा एरिया भी है जो फॉरेस्ट के अंडर आता है, लेकिन फॉरेस्ट भी जो है वो रह जाते हैं अनमेजर्ड। तो फॉरेस्ट को मेजर नहीं किया जाता, बल्कि कल्टिवेबल लैंड का जब मतलब आता था तो वो सिर्फ उन्हीं लैंड को मेजर करते थे एम्पायर के जिसके ऊपर कल्टिवेशन होती थी। बट औरंगजेब ने ये ऑर्डर दिया कि अब से फॉरेस्ट का एरिया भी जिसमें कल्टिवेशन की जा सकती है उस लैंड को भी आपने मेजर करना है। सो नाउ द नेक्स्ट topic is classification of land under Akbar. So following is the listing of the criteria of classification आइन अकबरी में जो दिया गया है ऑफ द अकबर। द एम्परर अकबर इन हीज प्रोफाउंड सेगेसिटी क्लासीफाइड, सेगेसिटी मतलब जब वो सेग्रीगेशन कर रहे थे तो उन्होंने क्लासीफाई किया है लैंड, डिफरेंट लैंड्स को, एंड इवन फिक्स्ड अ डिफरेंट रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच। उन्होंने लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो लैंड था दैट इज़ पोलेज, इट इज़ द लैंड विच इज़ एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन। पोलेज वो लैंड था जो सबसे फर्टाइल था और हर साल उसमें सीक्वेंस वाइज प्रोडक्शन की जाती थी और कभी भी उसको इज़ नेवर अलाउड टू बी फैलो, कभी भी उसको खाली नहीं छोड़ा जाता था। उसको कहते थे पोलेज लैंड। पोलेज लैंड मतलब वो लैंड जिस पे एनुअली फसल के बाद दूसरी फसल निकाली जाती थी बिना किसी ब्रेक के। सेकेंड लैंड था परौंटी। परौंटी इज़ अ लैंड विच इज़ लेफ्ट आउट ऑफ कल्टिवेशन फॉर अ टाइम दैट इज़ मे रिकवर इट्स स्ट्रेंथ। वो लैंड जिसको कुछ समय के लिए कल्टिवेशन उस पर नहीं की जाती थी सो दैट इट कैन रिकवर इट्स फर्टिलिटी। थर्ड जो लैंड था, लैंड की टाइप थी, वो थी शाशर। शाशर एक ऐसा लैंड था जो कि फैलो लैंड था फॉर दीज 3 और 4 ईयर, जिसको कि 3 और 4 ईयर्स के लिए खाली छोड़ दिया जाता था सो दैट इट कैन ऑल्सो रिकवर इट्स फर्टिलिटी। मतलब वो उतना फर्टाइल नहीं होगा इसलिए उसको फर्टिलिटी रिकवर करने के लिए 3-4 साल लग जाते थे। और फोर्थ टाइप ऑफ लैंड थी बंजर। बंजर इज़ द लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 5 ईयर्स एंड मोर। ये ऐसा लैंड था जिसके ऊपर कल्टीवेशन कम से कम 5 और 6 ईयर्स से, कई बार 5 से भी ज़्यादा ईयर्स तक उसमें कल्टीवेशन नहीं की जाती थी, इसलिए वो बंजर, उसको बंजर कहते थे। ऑफ द फर्स्ट 2 काइंड्स ऑफ लैंड देयर आर 3 क्लासेस। और जो पहले 2 हैं पोलेज और परौंटी, इसमें 3 क्लासेस थी लैंड की। एक था गुड लैंड, सेकेंड वन था मिडलिंग जो कि मीडियम में आता था, और थर्ड था बैड लैंड। एंड दे ऐड टुगेदर द प्रोड्यूस ऑफ ईच सॉर्ट एंड द थर्ड ऑफ दिस रिप्रेजेंट द मीडियम प्रोड्यूस। और वो जो पहले वाले 2 थे उसकी प्रोड्यूस को इकट्ठा रख देते थे और उसके अकॉर्डिंगली असेसमेंट करते थे रेवेन्यू की। और जो थर्ड पार्ट था जिसको बैड कहते हैं, बैड लैंड मतलब जो पार्ट था जिसमें इनफर्टिलिटी होगी, मतलब लैंड बहुत कम फर्टाइल होगा, उसकी प्रोड्यूस को वो सेपरेट रखा करते थे। और इस तरह से वो फिर फर्स्ट और सेकेंड लैंड में से जाके जो कि गुड और मिडल था उसका 1/3 पार्ट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ दैट लैंड वॉज टेकन एज अ रॉयल ड्यूज। रॉयल ड्यूज मतलब एज अ रेवेन्यू was collected from that particular area. Now let's see this mansabdari system. Mansabdari system you read in grade 7 also in the Mughal Empire system में, the Mughal Empire में the Mughal administrative system had its apex military cum bureaucratic apparatus, उसको कहते थे mansabdars. Mughal emperors what they did, they have given some तो we cannot say that a large part of the land or his territory मनसब्स। मनसब एक रैंक होता था, उसको कुछ टेरिटरी दे दी जाती थी, अपने एम्पायर की कुछ पार्ट ऑफ द टेरिटरी दे दिया जाता था। उस टेरिटरी में उसको अपनी मिलिट्री को भी खुद मेंटेन करना होता था, मिलिट्री भी खुद बनाते थे, खुद उसको मेंटेन भी करते थे, और वो मिलिट्री सपोर्ट एम्पायर को भी, मुगल एम्परर को भी देना है वेन एवर दे वांट। और ये मनसबदार्स वर अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर। फाइन।
So these mansabdars were collecting the revenue from that particular area, out of which some they keep for themselves for their own use, some they were using for the military maintenance, and baki rest they were depositing to the royal dues. So which was responsible for looking after the civil and military affairs of that state. So मनसबदार का काम था कि नॉट ओनली सिविल बल्कि मिलिट्री अफेयर्स को भी देखना. सम मनसबदार्स वर पेड इन कैश, और कईयों को तो इन मनसबदार्स को वो मुगल एम्परर्स रेवेन्यू में से कुछ नहीं लेने देते थे. दे वर पेइंग दैम इन कैश, जिसको कहते थे नकद. वाइल द मेजोरिटी ऑफ दैम वर पेड थ्रू असाइनमेंट्स ऑफ रेवेन्यू, और कई बार इन मनसबदार्स को वो रेवेन्यू असाइनमेंट दे देते थे, मतलब लैंड दे देते थे. एंड दे वर सेइंग दैट कि इसमें से आप रेवेन्यू को कलेक्ट करो इन जागीरों में से, एंड देन यू कैन कीप समथिंग फॉर यू, एंड देन you can deposit rest in the treasury of the Mughal Empire. But these mansabdars were most of the time they were transferred from one place to one mansab to another mansab, ताकि वो एक जागीर से दूसरी जागीर पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, सो दैट दे कैन नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर बाय स्ट्रेंथनिंग हिज पावर, मिलिट्री पावर इन दैट पर्टिकुलर मनसबदारी में. ठीक है. सो आइन ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ऑल्सो, कि इट वॉज ऑल्सो कलेक्टेड इन कैश एंड इट वॉज ऑल्सो कलेक्टेड इन काइंड ऑल्सो. कैश मतलब पैसों में, एंड काइंड मतलब चीज़ के बदले में चीज़ को एक्सचेंज करना. मतलब रेवेन्यू के बदले रेवेन्यू पैसों में ना देकर बल्कि उसकी जो भी ग्रेन्स वो उगाते थे, क्रॉप्स उगाते थे, उसी को देना. सो लेट हिम मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है रेवेन्यू ऑफिशियल को कहते हैं अमील गुज़र. ठीक है. सो उनका ये कहना था, अकबर का ये कहना है, क्योंकि आईने अकबरी में ये लिखा गया है कि अमील गुज़र नॉट मेक इट प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग ओनली इन कैश, कि अमील को कभी भी जो रेवेन्यू है नॉट टू बी कलेक्टेड इन कैश बट आल्सो इन काइंड, एंड द लेटर दैट इज़ काइंड इज़ अफेक्टेड इन सेवरल वेज. और ये जो काइंड में लिया जाता था, मतलब जो ग्रेन्स ली जाती थी उनसे, इसके लिए भी डिफरेंट मेथड्स थे. फर्स्ट था कनकूट. कनकूट को हिंदी लैंग्वेज में कन का मतलब होता है ग्रेन, एंड कूट का मतलब होता है एस्टिमेट. मतलब उनकी जितनी क्रॉप हुई है उसमें से कुछ पार्ट सीधा एज अ क्रॉप ही उनको दे दी जाती थी, जबकि कोई ऐसा भी सिस्टम था जिसमें कि वो क्रॉप को पहले मार्केट में बेचते थे, फिर उसमें से वो कैश में पे करते थे अपने रेवेन्यूज़. लेकिन एक सिस्टम ऐसा था काइंड, जिसमें कि काफ़ी सारे डिफरेंट आगे सिस्टम उन्होंने चलाए, जिसमें से कनकूट था, जिसमें से कनकूट में ये था कि इफ़ एनी डाउट अराइज द क्रॉप शुड बी कट एंड एस्टिमेट इन 3 लॉट्स. वो क्रॉप को पहले काटते थे, फिर उसको 3 लॉट्स में उसका एस्टिमेट मतलब उसका वेट करते थे. एक तो सबसे अच्छी क्रॉप उस एरिया की, उस फील्ड की, उससे बाद मीडियम सी, एंड द इन्फीरियर वन, एंड द हेजिटेशन रिमूव्स ऑफन टू द लैंड टेकन बाय अप्रेजमेंट. जब भी कभी वो कोई भी लैंड लेते थे, कोई भी लैंड वो जब फार्मर को देते थे, तो अप्रेजमेंट के अकॉर्डिंगली कि गिव्स अ सफिशिएंट एक्यूरेट रिटर्न आल्सो, कि ऐसे लैंड वो फार्मर को दिया करते थे कि जिसमें से उनको एक्यूरेट जो रिटर्न्स भी मिले. ऐसे नहीं कि अगर एक जो एरिया है उसमें सारा लैंड इनफर्टाइल है तो उसको मनसबदार को सारा वही एरिया दे दो, सो दैट ही कैन नॉट इवन गेट दैट रिटर्न्स, मतलब उतना वो उससे ले ही ना सके जितना कि उसको वहाँ पे डिपॉजिट भी करवाना है. सेकेंड था बट्टा. बट्टा कहते हैं कि एक्सचेंज करना. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड भोली. द क्रॉप्स आर रीप्ड मतलब क्रॉप्स को पहले गैदर किया जाता था. रीप का मतलब होता है गैदर करना. एंड स्टैग्ड मतलब उसके ढेर लगा दिए जाते थे. एंड डिवाइडेड एग्रीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टीज़, और जितने भी वो फार्मर्स होते थे उनकी प्रेजेंस में ही, मतलब जिसको उन्होंने वो रेवेन्यू देना होता था उसके लिए वो उनके ढेर लगाकर फिर एग्रीमेंट आपस में बातचीत करके ही वो सारी पार्टीज़ के बीच में उसको डिवाइड कर देते थे. उसमें फार्मर भी आता था, उसमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी आते थे. बट इन दिस केस सेवरल इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर्स, कोई एक पर्सन ऐसा भी चाहिए था जो कि उसको इंस्पेक्ट भी करे, चेक भी करे. अदरवाइज द इविल माइंडेड एंड फॉल्स आर गिवन टू डिसेप्शन. नहीं तो जो इविल माइंडेड कोई होते हैं ना, चालाक माइंड के, बड़े चतुर से, वो क्या करते थे, कई बार इन फार्मर्स को धोखा भी दे दिया करते थे. थर्ड मेथड था, फर्स्ट हमने पढ़ा कनकूट, सेकेंड हमने पढ़ा है बट्टा, एंड थर्ड है खेत बट्टा मतलब खेतों को एक्सचेंज करना. व्हेन दे डिवाइड इनटू फील्ड्स आफ्टर दे वर सोन, जब खेत में फसल उगा दी जाती थी तो वो क्या करते थे, खेतों को फार्मर्स के बीच में एक्सचेंज कर देते थे. सो दैट कि अगर एक किसी का खेत बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो उसमें से एक साल अगर उसको फ़ायदा हुआ है तो अगले साल दूसरे को रेवेन्यू देने में आसानी रही अच्छी फसल होने के बाद. और फोर्थ सिस्टम था अंग बट्टा. आफ्टर कटिंग द ग्रेन दे फॉर्म इट इन द हीप्स, मतलब ग्रेन्स को काटने के बाद वो उसके ढेर लगा देते थे. एंड डिवाइड इट अमंग देमसेल्व्स, और उसके बाद वो आपस में डिवाइड कर लेते थे. एंड ईच टेक हिज शेयर होम एंड टर्न इट टू प्रॉफिट. हर जो था अपना शेयर अपने घर ले जाता था और उसके बाद उसको अपना जितना चाहिए था खाने के लिए उतना रखकर बाकी का वो सेल करके अपने लिए प्रॉफिट कमा लेता था.
सो इसके बाद हमारे यहाँ सिस्टम स्टार्ट हुआ द फ्लो ऑफ सिल्वर, कैसे हमारी कंट्री में ओवरसीज ट्रेड से सिल्वर हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा फ्लो हुआ सिल्वर का कि कंट्री वॉज स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। द मुगल एम्पायर वॉज अमंग द लास्ट टेरिटोरियल एम्पायर्स। मुगल एम्पायर जो है वो बहुत लार्ज एम्पायर्स में माना जाता है इन एशिया, दैट हैड मैनेज टू कंसोलिडेट, जिसने कि अपने पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया और रिसोर्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया 16 एंड 17 सेंचुरी में। दीज एम्पायर्स वर मिंग एम्पायर चाइना का, सैफेविड एम्पायर ईरान का एंड ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की। इनके साथ ये मुगल एम्पायर भी सबसे बड़ी टेरिटोरियल पावर मानी जाती है वर्ल्ड में, इन एशिया में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव्ड बाय ऑल दिस, इन लोगों ने इतने सालों तक रूल किया, पॉलिटिकल पावर इनके पास रही, उसकी वजह से दे हेल्प टू क्रिएट वाइब्रेंट नेटवर्क ऑफ ओवरलैंड ट्रेड्स। और यही एक फ़ायदा था उनको ये हुआ ज़्यादा लंबे समय तक रूल करने का कि दे वर एबल टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ ओवरलैंड ट्रेड फ्रॉम चाइना टू मेडिटेरियन सी, that is near the Europe. And the opening of the new world resulted in a massive expansion of Asia's, स्पेशली इंडिया का एक्सपेंशन ट्रेड विद यूरोप। और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से इंडिया का ट्रेड था वो यूरोप के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। एंड दिस रिजल्टेड इन अ ग्रेटर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज़ ओवरसी ट्रेड। और यही एक इसकी वजह से ही हमारे इंडिया में जोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखी जाती है इन ओवरसीज ट्रेड एज वेल एज एक्सपेंशन इन द कमोडिटी कंपोजिशन ऑफ दिस ट्रेड। और इसकी वजह से हमारी कंट्री में डिफरेंट तरह की जो चीज़ें थी, डिफरेंट तरह की आइटम जो थी वो ट्रेड की गई। फाइन। एंड एक्सपेंडिंग ट्रेड ब्रॉट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियंस। और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारा सिल्वर इन बल्क मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिल्वर हमारी कंट्री में आया। और सिल्वर बुलियन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि कॉइन्स बनने से पहले ये सिल्वर जो था वो कॉइन्स नहीं थी बल्कि सिल्वर के रूप में ही, वैसे ही नॉर्मल सिल्वर के रूप में हमारे एशिया में आया टू पे फॉर गुड्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम इंडिया। जो इंडिया से वो चीज़ें हमसे खरीदते थे उसके बदले में हमें सिल्वर मिलता था बाहर की कंट्रीज से। और ये रीज़न था क्योंकि हमारी कंट्री उस समय में ट्रेड से बहुत ज़्यादा रिस्क थी ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमारी कंट्री में बाहर की कंट्री से जो चीज़ें हम उनको एक्सपोर्ट किया करते थे उसके बदले में हमारी कंट्री में सिल्वर का फ्लो बहुत ज़्यादा आया। बहुत ज़्यादा सिल्वर जो था वो बल्क में हमारी कंट्री में आया। दिस वॉज गुड फॉर इंडिया एज इट डिड नॉट हैव नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सिल्वर। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि इंडिया में सिल्वर की कोई माइंस नहीं थी, सिल्वर के कोई रिसोर्सेज नहीं थे नेचुरल। एज अ रिजल्ट द पीरियड बिटवीन द 16th and 18th centuries was also marked by a remarkable stability in the availability of metal currency। और इसलिए कहते हैं कि ये जो 17 और 16 से 18 सेंचुरी जो है इंडिया की, उसको माना जाता है कि ये एक ऐसा पीरियड है स्टेबिलिटी होती है जब लंबे समय तक एक ही एम्पायर रूल करता है कि जिसमें बहुत सारी मेटल करेंसी पर्टिकुलरली सिल्वर रुपया जो कि हमारे इंडिया में आया। दिस फैसिलिटेटेड इन अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन ऑफ मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। और इससे क्या हुआ, फैसिलिटेटेड मतलब इसने हेल्प की अनगिनत कॉइन्स को मिंट करने में, क्योंकि अगर हमारे पास सिल्वर बल्क में है तो डेफिनेटली वी आर एबल टू मिंट coins out of that silver and even circulation of money in the economy as well as ability of the Mughal state to extract taxes and revenue in cash। और इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मनी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ इकॉनमी मतलब मार्केट में, और ड्यू टू विच नाउ द एम्पायर वॉज वेरी ईजिली एबल टू एक्सट्रैक्ट मतलब रेवेन्यू जो कलेक्ट करता था वो किस में करता था, कैश में, क्योंकि सबके पास जो था वो कॉइन्स थी। एंड टेस्टिमनी ऑफ एन इटालियन ट्रेवलर एक इटालियन ट्रेवलर है जिसने बताया, ग्लोवानी कैरियट जिसको हम कहते हैं, हु पास्ड थ्रू इंडिया, ही प्रोवाइड्स अ ग्राफिक अकाउंट। ग्राफिक मतलब ग्राफिकल अकाउंट्स अबाउट द वे सिल्वर ट्रेवल्ड। ग्राफिकल फॉर्म में उसने बताया कि कैसे सिल्वर किस ईयर में कितना हमारी कंट्री में आया, किस ईयर में कितना आया, मतलब उसके अकॉर्डिंगली ये ग्राफ ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया। एंड इट आल्सो गिव्स एन आइडिया ऑफ द फिनोमिनल अमाउंट ऑफ कैश एंड कमोडिटीज़ कि हमारी कंट्री में कितनी जो ट्रांजेक्शन्स थी वो कैश में हुई और कितनी ट्रांजेक्शन थी वो कमोडिटी की फॉर्म्स में हुई। दिस ऑल इन्फॉर्मेशन वॉज ऑल्सो he has given in his records. So next topic we will do tomorrow.